الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں مکمل کی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 6 آیت سے آغاز کریں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پہلی 5 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے بارے میں بتایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، یعنی قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ ڈرنے والے ہیں، ڈر ڈر کر اور بچ بچ کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان کی کچھ صفات بھی بتائیں، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، غائب پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج دوسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک۔ یہ عام طور پر کسی لفظ کے، کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو بات آگے بیان ہونے جا رہی ہے وہ بات حق ہے، وہ بات سچ ہے، اس بات میں یقین ہے۔ یعنی کسی فیکٹ کو جب بیان کرنا ہو تب اس سے پیچھے انا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 اور الفاظ ہیں، جو ساتھ ساتھ آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ انا جو ہے کسی فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے، کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا کا ترجمہ بے شک بھی کیا جا سکتا ہے، یقیناً بھی کیا جا سکتا ہے، تحقیق بھی کیا جا سکتا ہے، حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، کچھ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جس جملے یا جس لفظ سے پہلے آتا ہے یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا، اس کے بعد اللہ زینہ وہی کلمہ جو ہم بار بار پڑھ چکے، اللہ زی جو، اور یانون جو ہے یہ ہم جانتے ہیں جمع کی علامت ہے، اور اللہ زی کا مطلب جو ایک شخص یا جو ایک چیز یا شخص، اور یانون جمع جو سب لوگ، جو لوگ۔ تو یقیناً جو لوگ، کفرا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب انکار کرنا یا انکار کیا، اور اس کے ساتھ واو الف لگ گیا۔ واو الف جمع کی علامت ہے۔ ہم اب تک 3 جمع کی علامتیں دیکھ چکے ہیں جو بار بار ہم دیکھتے ہیں، یا نون، واو نون اور واو الف۔ ہم یا نون کو بھی دیکھ چکے ہیں اور واو نون کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس واو الف بھی آ گئی۔ یا نون کو ہم نے وہاں دیکھا تھا، نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے نستعین میں دیکھ چکے ہم، اور واو نون کو ہم یہاں پہ یومنون، ینفقون میں دیکھ چکے، اور واو الف یہ کفرو میں آ گیا۔ تو یہ 3 مشہور جمع کی علامتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کفرا انکار کیا، واو الف سے انہوں نے انکار کیا، ان سب نے انکار کیا۔ تو یقیناً جو لوگ، ان سب نے انکار کیا، تو یہ ہوگا یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا۔ انا یقیناً، اللہ زینہ جو لوگ، کفرو ان سب نے انکار کیا، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، یعنی کسی چیز کو برابر کر دینا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برابر، کیا چیز برابر ہے؟ الا، پر، ہم وہی ضمیر ہے، ہم ضمیر، ہم ضمیروں کو دیکھ چکے ہیں، یہ 3rd پرسن کی ضمیر ہے، وہ سب، ان کا، انہیں۔ اگر آپ ضمیروں میں دیکھیے تو یہ 3rd پرسن کی ضمیر یا غائب کی ضمیر جو ہمارے پاس ہے، اس میں یہ ہمارے پاس جو ہوا ہے یہ اصل میں ہم جو ہے اس کا پلورل ہے، یہ ہم 3-4 دفعہ دیکھ چکے ہیں، یہ ہم اس کا پلورل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3rd پرسن کی طرف، جو کہ کانورسیشن میں بولنے اور سننے والے کے علاوہ ایک تیسرا شخص جس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔
तो ये उसके बारे में है। तो अलाहिम बराबर है उन पर, अला का मतलब पर, तो इसका क्या बनेगा मतलब बराबर है उन पर, यानी इन्ना यकीनन अल्लाजीना जो लोग कफरू, यानी जिन लोगों ने कुफर किया, जिन लोगों ने इनकार किया, बराबर है उन पर हम। तो ये आप देखिए, ये जो हम ज़मीर है, हमने ये बात की थी कि ज़मीर जो है हमेशा किसी ना किसी जगह लौटती है। अगर थर्ड पर्सन की ज़मीर है तो पीछे जुमले में उस थर्ड पर्सन का कोई ना कोई रेफरेंस होगा, तो ज़मीर उसको रेफर कर रही होगी। अगर सेकंड पर्सन की ज़मीर है तो वो भी जुमले में कहीं ना कहीं मौजूद होगा कि जिससे बात हो रही है, या हम पढ़ने वाले को हमें मालूम होगा कि ये बात किससे हो रही है, या फिर ज़मीर बोलने वाले की तरफ लौट रही होगी। तो यही तीन सूरतें होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम ज़मीर है जो कि थर्ड पर्सन के लिए है, तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन ये लौट रही है अल्लाह जीना की तरफ, यानी उन लोगों की तरफ। अल्लाह जीना कफर, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके ऊपर ये ज़मीर लौटी, यानी बराबर है उन पर, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है, उनके बारे में बात हो रही है। तो यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है उन पर। क्या चीज बराबर है उन पर? आ का मतलब होता है, वैसे तो इसका आम मतलब होता है, ये सवालिया तौर पे आता है। क्या इसका मतलब होता है, यानी किसी चीज के बारे में आपने पूछना हो कि क्या ये एक क्या क्या इस वक्त मौसम ठंडा है, क्या इस वक्त मौसम गर्म है, इस तरह की अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो शुरू में अलिफ आ जाता है, हमजा, अलिफ हमजा वाला। अरबी में दो अलिफ होते हैं, एक हमजा के बगैर और एक हमजा वाला। तो ये जो हमजा वाला अलिफ है, इसका मतलब आम तौर पर, इसके कई मतलब हैं, लेकिन इस ये कई जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका आम मतलब जो है वो क्या, यानी क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। लेकिन यहाँ पर ये जिस तरह उर्दू में हम ख्वा बोलते हैं कि ख्वा ये तुम काम करो या ना करो, ये इस माना में है। तो आ ख्वा, आगे कलमा इंजार का है, अनजरता हूं। तो अनजरता में इंजार, ता और हम, इन तीनों को हम अलग-अलग देखेंगे। सबसे पहले इंजार, इंजार का मतलब होता है डराना। ये हम अपने तारुफ में भी देख चुके कि इंजार हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वो कि आम उर्दू में इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल उर्दू के लिटरेचर में इंजार का इस्तेमाल ज़रूर होता है। आम बोलचाल में शायद हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब होता है डराना। हमने देखा था कि अंबिया का और रसूलों का एक काम ये होता है कि जहाँ वो आने वाली ज़िंदगी की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, वहाँ आने वाली ज़िंदगी की तकलीफ़ों और अजाब से लोगों को डराते भी हैं। तो अंजर, अंजार डराना, ता ये फिर ज़मीर है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अगर अब हम ज़मायर को देखें तो यहां पर ये ता ज़मीर है। ये देखिए, ये कलमे के आखिर में आए या शुरू में आए, ये असल में जिससे बात हो रही है, जो हाजिर है, उसकी तरफ, यानी सेकंड पर्सन, उसकी तरफ रेफर करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। यानी ख्वा तुम डराओ, इंजार का मतलब डराना, ता का मतलब तुम, तो तुम डराओ या तुमने डराया। और हम फिर वही ज़मीर, अभी हमने यहां पर देखा इलैहिम, हिम, ये फिर दोबारा उन्हीं लोगों की तरफ लौट रही है। किन लोगों की तरफ? जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाज़ीना कफरू की तरफ लौट रही है। तो यानी कहा यह जा रहा है कि इन अल्लाज़ीना, बेशक जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर, यानी जिन्होंने कुफ्र किया उन पर बराबर है। ये कैसे पता चला कि ये बराबरी उन पर हो रही है? ये हम की वजह से, कि हम अल्लाज़ीना कफरू की तरफ जा रही है, कि उन पर बराबर है। ख्वा ता से तुम डराओ उन्हें, फिर ये हम ज़मीर उनकी तरफ जा रही है, यानी तुम उन लोगों को डराओ जिन्होंने कुफ्र किया। पूरा जुमला ये होगा, हम के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो ये है अल्लाज़ीना कफरू। तो यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया, ख्वा तुम उन्हें डराओ, उनके लिए बराबर है। क्या चीज बराबर है? आगे देखिए,
अम का मतलब होता है या, लम ये ला की तरह है, जिस तरह अरबी में ला बोला जाता है इसी तरह लम भी बोला जाता है। लम का मतलब होता है नहीं। ये फिर ता वही ज़मीर आ गई और मुजारे की अलामत, मुजारे की अलामत से हाल का तर्जमा पैदा हो गया, यानी प्रेजेंट का और फ्यूचर का तर्जमा पैदा हो गया। तो इसको देखिए दोबारा, ये देखिए ये वही ता है, पहले आखिर में आई थी अंजरता और अब शुरू में आ गई तुनजिर हूं। तो यहां पर देखिए ता, तुम, फिर वही इंजार का कलमा डराना, तुम डराओ, और फिर वही हम ज़मीर, और ये फिर उन्हीं की तरफ लौट रही है, किन की तरफ? अल्लाज़ीना कफर। यानी क्या तर्जुमा बना? बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उन पर, ख्वा डराओ तुम, ता का मतलब तुम हम का मतलब उन्हें, यानी अल्लाज़ीना कफरू को डराओ तुम उन्हें, या लम ना तुम उन्हें डराओ, ना तुम डराओ उन्हें, फिर हम अल्लाज़ीना कफरू को, यानी अल्लाज़ीना कफरू को तुम डराओ या ना डराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक, फैक्ट बयान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र कर दिया, जिन लोगों ने इनकार कर दिया, उनको तुम डराओ या ना डराओ। डराना किससे होता है? आखिरत से, आखिरत के बाद के अजाब से, आखिरत के बाद की बुरी जिंदगी से, इस चीज से डराना होता है। तो यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिन लोगों ने तो कुफ्र कर दिया, यानी जिन लोगों ने इनकार कर दिया, इनकार देखिए, एक वो लोग जो मान गए, एक वो लोग जो अभी रास्ते में है, बीच में है, यानी ना उन्होंने अभी इनकार किया ना भी उन्होंने माना, वो सोच रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसा भी हो रहा है, दलील भी दी जा रही है, वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, उनका मामला भी और है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने इनकार कर दिया, यानी एक गिरोह वो जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का फैसला कर दिया, और एक गिरोह वो जिन्होंने इनकार का फैसला कर लिया। तो सबसे पहले जिन्होंने मानने का फैसला किया था उनका जिक्र हुआ था पहली 5 आयत में, और अब उनका जिक्र हो रहा है जिन्होंने इनकार कर दिया है, उनका जिक्र नहीं हो रहा कि जो बीच में है। तो तुम उन्हें डराओ, ख्वा तुम उन्हें डराओ या तुम उन्हें ना डराओ, ला युमिनून। ये अल्लाह ताला ने एक बात बता दी कि जिन लोगों ने तो इनकार कर दिया है, अब वो इस जिन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्होंने इनकार कर दिया, ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने इनकार कर दिया, अब उनके लिए बराबर है कि तुम उन्हें इंतजार करो या ना करो। ला का मतलब नहीं, युमिनून वही हम बार बार देख चुके, या ये वही ज़मीर है, इसका मतलब वो ईमान का कलमा, वो ईमान लाते हैं, और वाउनून वो सब ईमान लाते हैं, और ला की वजह से नहीं, वो सब ईमान नहीं लाते, वो सब ईमान नहीं लाएंगे। हम जानते हैं कि या जो है ये मुजारे है, और मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर का तर्जमा दोनों होते हैं। तो यहां पे हम फ्यूचर का तर्जमा करेंगे, क्योंकि यहां एक फैक्ट बयान हो रहा है कि उनका नतीजा बयान हो रहा है। तो नहीं वो ईमान, वो सब ईमान लाएंगे, यानी वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उन पर, ख्वा डराओ तुम उन्हें या ना तुम उन्हें डराओ, ना तुम डराओ उन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। आज वक्त थोड़ा सा ऊपर हो गया, इंशाअल्लाह ताला कल अगली आयत से शुरू करेंगे और फिर इस आयत को अगली आयत से रब्त जोड़कर इसका तर्जुमा करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।